बुद्धि से निकले शब्द हैं बुद्ध और बौद्ध। बुद्धि का आशय यहाँ विवेक से है। कहा गया है कि जिसका विवेक जाग गया वह बौद्ध है। इसी विवेक को जगाने की प्रक्रिया है मन की प्रशिक्षा। इसका अनुपालन करना ही बौद्ध हो जाना है। इसी प्रशिक्षा अर्थात विशिष्ट शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बौद्ध गुरुवर 13वें सोना रिनपोचे 5 दिवसीय अभियान के साथ असम पहुंचे। यह दौरा मुख्य रूप से बौद्ध तीर्थ स्थलों का था। तो आइए शिराब सांको सोसाइटी की इस प्रस्तुति में अगले 7 दिनों तक इसकी कड़ियां देखते हैं। सफलता, सुख और शांति हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, मगर कितने लोगों ने इसे पाया है? आपने कभी सोचा कि इसे कैसे पाया जा सकता है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने प्रयास किया और उसे नहीं पाया। हमारा सार्थक प्रयास हमें सब कुछ दे सकता है। हाँ, इसे निश्चित ही पाया जा सकता है, लेकिन इसे पाने का आपका मार्ग क्या है, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। गौतम को भगवान बुद्ध भी इसी सार्थक प्रयास ने बनाया। उनके निजी अनुभवों को हम अगर अपनाएं तो सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं है। यह सूत्र सिर्फ आशीर्वाद का नहीं था, यह था वह मार्ग जिसे अपनाने को महापुरुष कहते रहे हैं। यह वह सूत्र है जिसे अपनाकर जीवन को सार्थक किया जा सकता है। तिनसुकिया के जागुन में चैत्य एवं मोनेस्ट्री का उद्घाटन के बाद गुरुवर 13वें सोना रिनपोचे ने वहां के लोगों को वह तरीका बताया जिससे सफलता, सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। जागुन में धर्म सभा समाप्त करके वे लेखापानी गोनपा में पहुंचे। वहां भी कुछ सूत्र गुरुवर ने बांटे जो आम व्यक्ति की जिंदगी को सार्थक कर सकता है। करुणा और मैत्री इसके लिए जरूरी तत्व हैं। ओम मणि पद्मे हुम जन्म जन्मांतरों से मुक्ति का महामंत्र है। इसके मणि से करुणा को जगाते रहना चाहिए। स्वयं को जगाने का यह महामंत्र एक बड़ा जरिया है। अंत में वहां के बंधुओं से विदा लेते हुए उन्होंने दुलियाजान और उरियाम घाट के लिए प्रस्थान किया। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Trastele and Namaste. 3rd of January 2011, Monday, 29th lunar day of the 11th month, Earth Water. It is an auspicious combination and can lead to youthfulness, which indicates happiness, joy, and are good for dressing ups, doing amusements, festivities, and feast, and particularly good for paying offering to root gurus and offering to Naga and other deity. Favorable for surgical works as well as starting of new home, cultivation of seeds, and plantation of flowers and trees are favorable, and especially a good day for people who are born under the animal sign of dog. But it may not be so good in starting off court cases or disputes, dealing wealth related matters, and particularly a bad day for doing puja for death anniversary or deceased one, which we call as Lomchu, as it is Sheikh Namgos. The day may not prove good to others as there is Thua, and which makes hard to fulfill wishes. 4th of January 2011, Tuesday, and 30th lunar day, 11th month. The elemental combination is fire water, which is a bad elemental and brings disharmony and are capable to bring separation among friends and relatives, may bring diseases and ill health,
Not a good day for shifting of residence or home. Starting of new business and sending parcel etc. are not good for today. And since it is Chi in Namgu, so it is not auspicious for almost all of activities. Particularly, it is a bad day for the animals who are born under the bird and monkey signs. The day itself is though good for raging wars, fighting court cases, asking for debts and adopting new pets, favorable for coronation of military personalities, to demolishing of all home or houses, doing surgical works, etc. are good for these days. Particularly a good day for snake and house, since Phumthong or empty was in its direction, therefore doing of all important activities at its direction should be avoided. 5th of January 2011, Wednesday and first lunar day of the 11th month, and it is best day for the people who are born under mouse and pig. The elementary combination is water and water, which is a good one and hence brings strength in life, and it is good for marriages and family matters. Learning musical instruments, starting of new home and digging of well or pump etc. are good on these days, and starting of business and plantation of trees and flowers can be also good in this day. But since it is drawing in Namgu, avoid inviting guests at home. In addition, the Lord of Sadak, Simpung, is also present in this day. Thus, undertaking journey may not be a good, and taking out of dead bodies, waving flags, sowing seeds and flowers etc. are not favorable on this day. Particularly, the people who are born under the house or snake are not a good day. Phumthong or empty was is at its direction, so important activities should not be done while facing east. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channels at same time. बहुत किला क्षेत्र में यहाँ पहुँच करके और हमारे जो है धर्म मित्र आप सबसे मुलाकात करने का एक अवसर हमें मिला है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सबसे मिल करके, क्योंकि आप प्रसन्नता इसलिए है कि हम सब एक भगवान बुद्ध जी के दर्शन को और उनके प्रवचन को मान करके हम पालन करते हैं, क्योंकि इस समय जो कि 21st सेंचुरी होता है, ऐसा एक साइंस के एक जमाना है, तो मैं कभी कभी मजाक करता हूँ। वैसे तो साइंस ने इस दुनिया को बहुत तरक्की भी किया है, लेकिन कभी कभी हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं उनसे थोड़ा थोड़ा झगड़ता भी है, क्योंकि हम लोग कहा करते हैं आज दुनिया के परिस्थिति जैसे बिगाड़ा है, एक नाजुक स्थिति जो बना है, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके वजह से हुआ है, तो उसमें करीब करीब 60-70% शायद साइंटिस्ट लोगों का भी हाथ हो सकता है। तो इसलिए हम लोग मजाक में कहा कि साइंस बहुत अच्छी भी है, लेकिन आज दुनिया जिस नाजुक स्थिति में पहुंचा है वो भी साइंस के
साइंस हमेशा, आप देखो, जब तरक्की की बात जरूर करते हैं, लेकिन नेचर के खिलाफ में आज जो 21st सेंचुरी मनुष्य आसमान में यात्रा करके चंद्रमा तक चलते हैं, वहां तक पहुंचता है। और ऐसा तरक्की करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकता था एक क्षण में यहाँ के समाचार पूरी दुनिया में पहुंचा। प्राचीन समय में हम सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा स्थिति होगा। लेकिन फिर नेगेटिव साइड में कहा जाए, जैसे मैंने कहा, आज हम पीने के लिए पानी का बोतल भूख की जाना पड़ता है। ये भी साइंस के मेहरबानी। अगर साइंस ने डेवलप करके अगर हमारे वातावरण को प्रदूषण नहीं फैलाते, अगर हमारे ग्राउंड वाटर जो नदियां हैं उसको गंदा नहीं करते, तो हम पानी भूख की जाने की आवश्यकता नहीं थी। पहले जमाना का जैसे हम जहां पानी मिला वो पी सकते। लेकिन आज सारे पानी को जहरीली जो बना दिया वो किसने? साइंस वाला ने। तो इसलिए हम सीधे उनको पूरे का पूरा पॉजिटिव में भी नहीं दे सकते, पूरे का पूरा नेगेटिव में भी देना चाहिए। तो कहाँ कमियां हैं उनको देखना। तो इसलिए उस कमियों को भरने के लिए दूसरा कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। उसमें अगर आध्यात्मिक की शिक्षा थोड़ा आगे बढ़े और लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू करें और धर्म को पालन करना शुरू करें, तो वो एक उस गैप को भर सकता है। आज के जो दुनिया में साइंस के तरक्की हो रहे हैं और जहां कमी हो रहे हैं, उसको गैप को केवल हमारे स्पिरिचुअल से भर सकते, उसके अलावा कहीं से नहीं भर सकते। क्योंकि स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक की शिक्षा जब होते हैं तो हम वैल्यू को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। अभी खास करके जब हम बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, तो मैं बौद्ध धर्म के बाद कहा जाए तो बौद्ध धर्म के मेन फिलोसफी क्या है? प्रतितो समोभाव। मतलब इंग्लिश में हम इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जो हमारा वास्तविकता क्या है और हमारा सत्य क्या है, अगर कहा जाए तो सत्य हम दूसरों को निर्भर करके बैठा, जो भी परिस्थितियां हैं और दूसरों पर निर्भर करके बैठा। तो उससे आपको क्या शिक्षा मिलता है? देखो, अगर आपके हर चीज दूसरों पर निर्भर है तो दूसरा अपने के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, कितना महत्व हो गया। अगर दूसरे लोग अपने के लिए इतना महत्व है तो ऑटोमेटिकली उनके प्रति आप रिस्पेक्ट करेगा ना। जबकि उनकी इंपॉर्टेंस को समझेगा, उनकी आवश्यकता को समझेगा, उनका महत्वपूर्ण को हम समझेगा, तो उनके प्रति रिस्पेक्ट करेगा और उसको नेग्लेक्ट नहीं, उसका अपमान नहीं करेगा। लेकिन आपके मन में अगर बुद्धिस्ट फिलोसफी का थोड़ा सा
बीज अगर आपके मन में है तो वो जैसे आगे मैंने कह रहा था कहाँ पे हमारा गैप हो रहा है तो उसको बढ़े। जब वो बढ़ने से क्या होगा, जो आज हम रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो नहीं होगा, वो दूरदृष्टि होगा और अपने फायदा के लिए दूसरों को नुकसान नहीं करवाएगा, क्योंकि दूसरा भी इतना इम्पोर्टेंट है अपने से ज्यादा वो समझेगा। जब वो नहीं समझने का कारण आज क्या दूसरा कुछ भी सत्यानाश हो, कुछ भी हो, मुझे बचने से मेरा घर बचने से ऐसा सोच, लेकिन ये नहीं है। अगर दुनिया नहीं बचेगा तो आप कहाँ से, अब समुद्र नहीं बचेगा तो आप छोटे मोटे नदियां कहाँ। तो इसीलिए मैं आगे बता रहा था आप लोगों से मिलकर मैं प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि आज के दुनिया में भगवान बुद्ध जी के फॉलोअर्स कोई कमी नहीं है, लेकिन असली में उनके राह पर चलने वाले के आवश्यकता है और वो हम लोग अपने आप को बुद्धिस्ट क्या करते कोशिश करते। लेकिन आप वो केवल हम बोलने से नहीं होगा, हमको प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, पालन करना होगा। और ये अकेला पालन करने से भी नहीं होता, उसको फैलाना है, दूसरा तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप दूसरा इतना दूर तक ना पहुंचा सके, कम से कम अपने संतान बच्चे बीवी तक तो पहुंचाए। अब हम इतना भी नहीं करते हैं कभी कभी। इसलिए मैं कहा करता हूँ मेरे दोस्त लोगों से, आप लोग के मेरे दोस्त धर्म मित्र हैं, भगवान बुद्ध जी के हम लोग सब चेले हैं, तो मैं आपसे सचमुच में आप दिल अंदर झोंक करके देख, आपसे नहीं पूछना चाहते। आप कहते हैं आप बुद्धिस्ट हैं, तो आप सोच के देखिए एक साल में 360 डेज, अब 360 डेज में आपने क्या क्या कार्यक्रम किया है, क्या क्या कार्य किया है, आपने क्या क्या प्लानिंग किया है, आप सोचिए।